So good morning everyone. Welcome to online classes of Lyall Public School. Today we will continue our science chapter number 11. Chapter name is air and water. Okay, and our today's topic is water. So let's start. All plants and animals need water to live. We use water for drinking, cooking, washing, bathing, cleaning, etc. The water that we use mainly comes from rivers, ponds, lakes, and wells. This water contains dirt, sand, mud, and germs that make it unfit for use. And the substances that make our water dirty or unfit for use are called impurities. Okay? ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे वाटर को डर्टी बनाते हैं या हमारे यूज के लिए अनफिट बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज कहते हैं, अशुद्धियां कहते हैं. क्लियर? नाउ द इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू काइंड्स, soluble and insoluble impurities. Soluble impurities dissolve in water, for example salt and sugar. Okay, soluble जो impurities हैं वो water में पूरी तरह से mix हो जाती हैं, dissolve हो जाती हैं, घुल जाती हैं. Okay, इसलिए हम उन्हें soluble impurities कहते हैं. Okay, and soluble impurities cannot be seen in water. हम उन्हें पानी में नहीं देख सकते हैं. And insoluble impurities do not dissolve in water, for example sand and mud. Insoluble जो impurities हैं वो पानी में dissolve नहीं होती हैं, water में अच्छे से mix नहीं होती हैं. Okay, that's why हम उन्हें insoluble impurities कहते हैं. And we can see insoluble impurities easily. Okay, water में easily हम उन जो soluble impurities हैं जो कि water में अच्छे से dissolve नहीं हुई हैं उन्हें हम आसानी से पानी में देख सकते हैं. Okay, now here are some methods for removing impurities from water. अब यहाँ पर हम कुछ methods discuss करने वाले हैं कि कैसे हम water में से, पानी में से soluble and insoluble impurities को remove कर सकते हैं. Okay, so different impurities are removed by different methods. First is removing insoluble impurities. सबसे पहले हम जो method पढ़ने वाले हैं that are removing insoluble impurities. कैसे हम insoluble impurities को water में से remove कर सकते हैं उसका हम process यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. Okay, so insoluble impurities can be removed by sedimentation, decantation and filtration. Okay, These are methods. ये methods हैं जिनसे कि हम insoluble impurities को, ऐसे impurities जो कि water में dissolve नहीं हुई हैं, उन्हें हम separate out कर सकते हैं. Clear? So first method is sedimentation and decantation. So water with insoluble impurities is allowed to stand undisturbed. After some time, the insoluble impurities settle down at the bottom of the container as sediment, and this process is called sedimentation. Okay, sedimentation and decantation process में क्या है? तो सबसे पहले ऐसा पानी जिसमें कि वो insoluble impurities हैं, आपको उसको क्या करना है? बिना डिस्टर्ब किए उसको 4 to 5 hours के लिए रखना है किसी भी जगह पर. ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम जो भी उसमें insoluble impurities हैं वो उस कंटेनर के बॉटम में क्या हो जाती हैं? सेटल डाउन हो जाती हैं एज द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट. ठीक है, जो भी मड है, डर्ट है, गंदगी है, जो भी उसमें सेडिमेंट है उसमें वो एज अ सिल्ट या फिर फिल्थ की फॉर्म में, सेडिमेंट की फॉर्म में नीचे वो मिट्टी या जो मड है, जो पेबल्स हैं वो उस कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. ओके, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन. Now, after sedimentation, the clean water can be slowly poured out into a separate container, and this process is called decantation. Okay, sedimentation process हो चुका है, means सारा जितना भी mud था वो as a sediment container के bottom में settle down हो गया. उसके बाद में ऊपर जो clean water है उसे जब हम किसी separate container में धीरे धीरे slowly pour out कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उस process को हम कहते हैं decantation. Clear? See in the picture. It's a picture of sedimentation and decantation. Okay, सबसे पहले देखिए फर्स्ट कंटेनर में यहाँ पर मडी वाटर है जिसमें से हमें इसे मड को क्या करना है? सेपरेट आउट करना है. तो हम इसे बिना डिस्टर्ब किए, अनडिस्टर्ब इस जो कंटेनर है इसे कुछ टाइम के लिए रखेंगे. एंड आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं? जो भी मड इस पानी में डिसॉल्व था
वो एज अ सेडिमेंट इस कंटेनर के बॉटम में यहाँ पर सेटल डाउन हो गया, ओके। एंड आफ्टर दैट ऊपर जो भी क्लीन वाटर है इसे आप इस तरह से स्लोली किसी अनदर कंटेनर में हम इसे पोर आउट कर सकते हैं, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ओके। Now, the rate of sedimentation can be improved by adding some chemicals like alum, and this process is called loading. Okay? अब हम जो sedimentation का process कर रहे हैं उसमें हम water को बिना disturb किए कुछ time के लिए रखते हैं। तो इस sedimentation का जो process है, जो mud particles हैं या pebble particles हैं या dirt जो भी उस water में dissolve है, उसका जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेसिंग है उसे हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन की रेट को हम फास्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि उसमें सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, लाइक एलम मीन्स फिटकरी, ओके। तो ये फिटकरी या जो एलम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब हम इसे ऐड करते हैं सेडिमेंटेशन की रेट को इंप्रूव करने के लिए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोडिंग, ओके। एंड सेडिमेंट जो एलम पार्टिकल हैं वो ऐसा क्या करते हैं, जिससे कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। सो दीज एलम पार्टिकल्स अटैच देमसेल्फ टू द इम्प्योरिटीज एंड दस मेकिंग दैम हैवियर। ये एलम पार्टिकल क्या करते हैं, अपने आप को जो इम्प्योर पार्टिकल थे, मड के जो पार्टिकल थे, सैंड के जो पार्टिकल थे, उसके साथ में अपने आप को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से वो जो मड का पार्टिकल है वो क्या हो जाता है, हैवियर हो जाता है, हैवी हो जाता है, ओके। एंड यू ऑल नो कि जो भी पार्टिकल जितना ज्यादा हैवी होगा वो फास्टली क्या करेगा, फास्ट रेट में बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है ना। हैवी पार्टिकल जो है वो जल्दी जल्दी बॉटम में सेटल डाउन होते हैं ड्यू टू हैवीनेस, बिकॉज हैवी हो गए हैं। एंड यही एलम का वर्क है। एलम के पार्टिकल इम्प्योरिटीज के पार्टिकल के साथ अटैच हो जाते हैं, उन्हें हैवियर बनाते हैं, एंड वो फास्टली क्या होते हैं, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, ओके। सो इन द पिक्चर लोडिंग प्रोसेस यहाँ पर शो किया गया है। मडी वाटर में आपने एलम के एक पीस को यहाँ पर ऐड किया तो सेडिमेंटेशन यहाँ पर फास्टली हो गया, क्लियर। Now come to next type of second process, that is filtration. So in this process liquid is passed through a filter paper. A mixture of sand and water can be filtered, okay. filtration में जो process है इसमें हम क्या करते हैं, filter paper का use करते हैं, clear। इसमें हमने क्या लिया है, mixture of sand and water। ये देखिए sand का and water का हमने यहाँ पर mixture लिया है। एंड यहाँ पर ये जो funnel आपको दिखाई दे रहा है कीप, इसमें यहाँ में हमने एक जो फिल्टर पेपर था उसका कोन इसके अंदर फिट किया है, ओके। The filter paper is folded twice to make a cone. एक स्क्वायर शेप का फिल्टर पेपर जो है स्क्वायर शेप का पेपर होता है, उसे हमें फोल्ड करके दो बार उसे कोन का शेप दे देना है, ठीक है। एंड दिस कोन इज कैप्ड इनसाइड अ फनल, एंड इस कोन को हमें इस फनल में इस कीप के अंदर यहाँ पर फिट कर देना है। नाउ द फनल इज कैप्ड ऑन द कोनिकल फ्लास्क एंड इम्प्योर वाटर कंटेनिंग सैंड इज पोर्ड इनटू द फनल। अब हमें इस जो फनल थी इसे इस कोनिकल फ्लास्क में हमने यहाँ पर फिट कर दिया है, रख दिया है, और उसके बाद में जो भी इम्प्योर वाटर था उसे हमने क्या किया है, इसमें से पोर आउट करना है, हमें छानना है, क्लियर। The water seeps through the filter paper and collect in the flask, and impurities like sand are left on the filter paper, okay। अब क्या होगा, जैसे ही हम फिल्टर पेपर में से पोर आउट करेंगे तो जो वाटर है वो तो सीप्स होकर मींस छन कर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होगा, नीचे जो हमने कॉनिकल फ्लास्क रखा है उसमें स्टोर होने लगता है क्लीन वाटर। एंड जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, जितना भी मड उस वाटर में डिसॉल्व था, मिक्स था, वो यहाँ पर इस फिल्टर पेपर पर यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, क्लियर। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन मेथड से हम इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज रिमूविंग सॉल्युबल इंप्योरिटीज, ओके। अब हम सॉल्युबल इंप्योरिटीज को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो सॉल्युबल इंप्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। यहाँ पर भी हम टू मेथड डिस्कस करेंगे, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। First is evaporation. It is the process of changing water into water vapor on heating. पहले भी previous chapters में भी आप पढ़ चुके हैं, previous classes में भी आप evaporation पढ़ चुके हैं। evaporation जो process है इसमें water जो है अपनी state change करके किस में convert हो जाता है, water vapor या steam में on heating। जब आप water को heat करते हैं तो वो किस में convert होता है, water vapor या फिर steam में, और इस process को हम evaporation कहते हैं।
When water evaporate, soluble impurities are left behind. और जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता जाएगा, जो भी soluble impurities थी वो नीचे उस कंटेनर में लेफ्ट रह जाती है. ओके, सो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं. एम टू रिमूव इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर थ्रू इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मेथड का यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करेंगे. Things needed: salt, water, salt, burner and beaker. Now dissolve 2 tablespoon of salt in some water. थोड़े पानी में आपको क्या करना है, 2 tablespoon salt को हमने dissolve कर दिया. And salt जो है easily water में dissolve हो जाता है, means वो soluble impurity है. Clear? Now heat the solution till the water evaporates completely. अब हमें पानी को इतना गर्म करना है, तब तक हमें वाटर को हीट करना है with the help of burner, कि वो पूरा जो पानी है वो completely क्या हो जाए, evaporate हो जाए. Okay. Now what we observe, when the water evaporate completely, salt is left behind in the beaker. और पानी जब पूरी तरह से evaporate हो गया water, तो यहाँ पर जो कंटेनर था, जो बीकर था, उसके बॉटम में यहाँ पर क्या रह गया, सॉल्ट जो है यहाँ पर पीछे रह गया. ओके, इस तरह से हमने वाटर में से सॉल्ट को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया. क्लियर? Now second method is distillation. So in distillation, impure water is heated on a round bottom flask till it start boiling. Okay, इसमें हम पानी को अगेन बर्नर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, एक राउंड बॉटम शेप का हमने फ्लास्क लिया है. ओके, इसमें हमने पानी को बॉईल करना स्टार्ट कर दिया है. Now on boiling, water change into steam. You all know कि पानी को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में. ओके, एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड. और जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता जाएगा, जितनी भी इसमें डिसॉल्व इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ पर पीछे इस बॉटम में, बॉटम जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें रह जाएंगी. ओके, now the steam passes through the condenser, which is kept cool by the cold water circulating in it. अब हमने क्या किया, इवेपोरेशन में तो हमने क्या किया था, वाटर जो पूरा था वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो गया था, स्टीम बन के एयर में मिक्स हो गया था. बट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो भी स्टीम इस बॉटम में से, इस फ्लास्क में से यहाँ से स्टीम बन रहा है वाटर में से, इसे हमने ऊपर लिड लगा दिया ताकि बाहर एयर में नहीं जा सके. एंड इसे हम किससे पास आउट करवा रहे हैं, एक कंडेंसर से यहाँ से पास आउट करवा रहे हैं, कंडेंसर के थ्रू. ओके, एंड इस कंडेंसर के अराउंड क्या है, कोल्ड वाटर है. ठीक है, तो जैसे ही ये जो स्टीम है इस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आती है, वो इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, and in the condenser the steam changes into water again and this water collect in the flask below. और ये जो पानी है वो नीचे यहाँ पर हमें एक फ्लास्क दिखाई दे रहा है, उसमें हम इस वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे. डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. एंड जो वाटर हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है थ्रू द डिस्टिलेशन मेथड, इस वाटर को हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर. एंड ये वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है डिस्टिल्ड वाटर. क्लियर? It is used in car battery, inverter battery, science laboratory, etc. And इस distilled water को हम कार बैटरीज में, इन्वर्टर की बैटरीज में एंड जितनी भी साइंस लैबोरेटरीज हैं उनमें हम इन्हें यूज करते हैं इस distilled water को. Clear? Now next is प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर का प्यूरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Now water may contain germs that can cause diseases like jaundice, cholera and dysentery. Therefore it needs to be purified. Okay, we all know कि पानी जो है उसमें बहुत सारी impurities होती हैं, germs होते हैं. Okay, जिससे हमें different kind की diseases हो सकती हैं like jaundice, cholera, dysentery. So that's why हमें water को क्या करने की requirement है, purify करने की requirement है. So in cities and towns, water from lakes or rivers is purified in big purification plants and then supplied to home. Their water is purified by sedimentation, filtration and chlorination. Okay, तो हमें अगर स्मॉल अमाउंट में पानी को प्यूरिफाई करना है वाटर को, तो वो हम अपने होम में घर पर भी कर सकते हैं. ओके, बट हमें पूरी सिटी को या पूरे टाउन को जब वाटर सप्लाई करना है, तो रिवर से या लेक से जब वाटर आ रहा है तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है ना, इम्प्योर वाटर होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं. तो उससे हम क्या करेंगे,
जो प्यूरिफिकेशन प्लांट्स हैं, बड़ी बड़ी इस तरह से पूरा सेटअप लगाया जाता है उस वाटर को क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। एंड उसमें कौन कौन से मेथड इंक्लूड्स हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। ओके, सो फर्स्ट देखिए, यहाँ से रिवर से इस वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है। देन फर्स्ट स्टेप इज वाटर इज कलेक्टेड. After that, sedimentation is done to be remove suspended impurities. Okay, suspended means जो भी उसमें dissolve नहीं हुई है, undissolved जितनी भी impurities हैं, particles हैं, उसे हम sedimentation process के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं ना। अभी हमने डिस्कस भी किया था, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं। तो इस तरह जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उसे हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ in third process filtration is done to remove finer particles. okay, but हमने sedimentation में तो क्या है, जो big particles होते हैं, sand है, pebble है, okay, and mud के भी जो बड़े particles हैं उसे हम sedimentation के through separate out कर सकते हैं. but जो बहुत ही ज्यादा finer particle है, बारीक जो एक sand आती है ना, finer जो sand होती है, वो जो impurities हैं वो हम filtration के through separate out नहीं कर, sorry, sedimentation के through हम उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं. ओके, नाउ आफ्टर फिल्ट्रेशन वाटर इज प्यूरिफाइड विद क्लोरीन. ओके, एंड फिल्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद में जर्म्स को किल करने के लिए हम उसमें एक केमिकल ऐड करते हैं, दैट इज क्लोरीन. एंड क्लोरीन वाटर में प्रेजेंट जितने भी जर्म्स हैं उन्हें किल करता है. ओके, After that, water is stored in big tank. Okay, every area में आपने देखा होगा इस तरह के big tanks या big जो tanks यहाँ पर बने होते हैं. इसके बाद में इन्हीं tank से जो water है houses में क्या किया जाता है, supply किया जाता है. Okay, clear? Now, at home, water can be purified by boiling, chlorination and water filter. Okay, तो ये तो हमने बात की है बिग लेवल पे, जब हम पूरी सिटी को या पूरे टाउन को जब वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए प्यूरिफिकेशन प्लांट जो सेटअप किए जाते हैं उसमें ये सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया. ओके, अब घर पर भी हम वाटर को क्या कर सकते हैं, बॉइल कर सकते हैं, क्लोरिनेशन कर सकते हैं, मीन्स उसमें क्लोरीन डालकर उसे प्योर कर सकते हैं, या फिर हम वाटर को फिल्टर भी कर सकते हैं. ओके, so let's discuss. First one is boiling. It is the simplest way to purify drinking water. Water drinking पीने के पानी को प्यूरिफाई करने का सबसे simplest method है boiling. Boiling water for about 10 minutes kill the germs present in it. अगर पानी को हम 10 मिनट तक boil करते हैं तो उसमें present सारे जो germs हैं वो kill हो जाते हैं. Now boiled water may be filtered through a clean piece of cloth and stored in clean and covered container. अब इस boiled water को हम किसी भी clean piece of cloth से, कपड़े से हम उसे filter कर सकते हैं और उसके बाद उसे clean and covered container में store कर सकते हैं. Second process is chlorination. So the process of adding chlorine to water to purify it is called chlorination. पानी में क्लोरीन को ऐड करना का जो प्रोसेस है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोरिनेशन. Chlorine tablets are easily available in the market. Chlorine kill the germs in water and make it safe for drinking. Chlorine जो है वाटर में प्रेजेंट जो germs हैं उन्हें किल करता है और उसे ड्रिंकिंग के लिए सेफ बनाता है. क्लियर? Now next is water filter. Water filter can also be used to purify water at home. Okay, RO machine जो हम यूज करते हैं उसके थ्रू हम वाटर को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं. Okay. Now let's memorize what is atmosphere. A blanket of air that surround the earth is called the atmosphere. Soluble impurities, impurities that dissolve in water and cannot be seen are called soluble impurities. ऐसे impurities जो water में पूरी तरह से dissolve हो जाती हैं, mix हो जाती हैं, उन्हें हम soluble impurities कहते हैं and हम उन्हें seen भी नहीं कर सकते. Clear? Next is insoluble impurities. Impurities that do not dissolve in water are called insoluble impurities. Next process is loading. The process by which rate of sedimentation can be improved by adding some chemical is called loading. Okay, कुछ केमिकल ऐड करके जब हम सेडिमेंटेशन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोडिंग. And the last one is chlorination, the process of adding chlorine to water in order to purify it is called chlorination. Clear?
Now let's revise. The air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and argon. The atmosphere protects us from meteoroids and harmful ultraviolet rays of the sun. Air occupies space, has weight, and exerts pressure. Insoluble impurities can be removed by sedimentation, decantation, and filtration. Soluble impurities can be removed by evaporation and distillation, and water is purified by sedimentation, filtration, and chlorination in big purification plant. Clear? So here is our chapter number 11 is completed. I hope you all understood about that. So thank you very much.